Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri. Today I'm super excited and pumped up because today we are going to try Zara Larsson's makeup look. Yes guys, colorful makeup are finally back in trend and I'm super excited because I just love colorful and blingy eye makeup. And special thanks to Sophia, who is Zara's makeup artist, and she brought back the trend. Internet is going crazy and how can I not do that makeup look? So today we are going to demonstrate this makeup look and I'm super excited. So if you are also excited in watching this makeup look, then without wasting any further ado, let's get started. Okay guys, let's start with our hashtag HCTM. तो आज hairs के लिए I'll be putting this headband. What time हो गया clock clips लगाते लगाते, so I thought of putting a headband today. And now let's tone our skin. I've already cleansed my face. For toner, I'll be using my Dalba First Press Serum. It's my absolute favorite. Guys, if you haven't tried this product, then you are missing out because it's the most hyped gem of 2025 and it's not a overhyped product. Like, it deserves all the hype and you should try it out too because I'm sure you are also gonna love it like the internet does. Now let's moisturize our face. For that, I'll be using Flicka moisturizing cream. Guys, this is also a very good cream and it's in budget as well, and especially for winters this cream goes perfectly well on the skin. Like, it hydrates the skin very well and you can see the kind of glow it has provided to my face. It's a very good face cream. And if you're also looking for good, affordable moisturizing cream to put before your makeup, then you should try this one out because this one is really a good cream. You all know that I always use Embroilers. That's an excellent face cream. But if you are looking for a budget affordable option, then you can go for Cetaphil or Flicka Silk Touch Moisturizing Cream. Okay guys, you have to wait for good 1 to 2 minutes for moisturizer to settle in your face and to prep your skin well. Don't rush with each and every step. And now to add extra glow to our face, I'll be using e.l.f. Hello Glow and I'm in the shade Fair, which is number 1. And I'll be applying it generously because Zara's skin is glowing and how, and we are also gonna achieve that makeup look. Like, you can see the rhinestones on the eyes, but her skin is glowing as well. So to bring back all the extra glow to your face, you have to use a good illuminator, and e.l.f. is a very good affordable option. Okay, I'll be blending it with my palms only because the heat in your hands make the product emulsify well and blend well on your skin. I know it's too much, but don't worry. Once we'll do a base makeup, it would all settle in. Don't worry. Okay, my skin is looking like a glass skin and I'm absolutely loving it. It's looking very juicy. Okay, I'm doing some skincare steps as well. I don't know why. Maybe I got carried away. We again have to wait for good 2 minutes for the illuminator to settle in our face and then we'll begin with color correcting. Okay guys, to color correct my under eyes, I'll be using darker shades of concealer, and for that I'll be using my absolute favorite combo, which is Huda Beauty plus Too Faced. And under Huda Beauty, I'm in the shade Candid Ginger, and under Too Faced, I'm in the shade Warm Sand. They both perform brilliantly well on my skin, especially to correct my under eye darkness. You can see I have a lot of pigmentation under my eyes, and to correct it, I need to use 2 concealers because I'm very finicky about it. I just want to be extra sure so that no of the darkness peeks through my skin and my base also doesn't turn gray. Okay, I have applied little extra. I'll wait for good 1 to 2 minutes for the concealer to get tacky and so as to get the maximum coverage out of these 2 concealers. Guys, here's a pro tip. If you want your concealer to provide you maximum coverage, then wait for good 1 to 2 minutes for it to be tacky and then blend it out. But this step only applies with the hydrating concealer. By that, I mean to say, like, Huda Beauty and Too Faced are both of the hydrating concealer. But if you will do this step with Tarte Shape Tape, then it won't work because it just settles and it won't blend. Okay, ज्ञान की बातें हो गई बहुत सारी. Now let's blend it off. For that, I'll be using a damp beauty blender, and this one is from the brand Prosh. You can see how quickly it blended off, and look at the coverage. All my darkness is concealed. Okay guys, it's time for foundation, and for that I'll be using my very favorite NARS foundation and it's in the shade Fiji. I'll be taking just a single pump on my palette. It's very less, like I need 1 more pump. Yeah, that would be very sufficient to cover my entire face. I'll just dot it across my face. It's a very good foundation, guys, especially for winters. You are gonna love this one because it's very radiating as well as luminous as well, and it provides such a nice glow
to your face that you would absolutely love it, especially for winters. It's a gem of a foundation. बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. Like winters में you all know कितनी सारी weddings होती हैं, and if you're also looking for a good foundation for yourself and you have a budget to splurge as well, then you can definitely try this foundation out and you won't be disappointed. It's a very good foundation and a must try. सर्दियों के लिए if you ask me two foundations, then I would recommend NARS का foundation and the other one is Huda Beauty का Easy Blur foundation. जो वो liquid वाला पैक आया ना, वो दोनों ही foundation कमाल है, कमाल. It's time for the contour, and for that I'll be using Fenty Beauty contour stick in the shade Espresso. It's a very good contour stick. एक तो stick form में है तो बहुत easily apply हो जाती है. You don't need an extra brush. And plus ये बहुत अच्छे से blend भी हो जाती है. It doesn't give you a hard time in blending. And you can see Zara's face. It's nicely contoured and highlighted. Guys, जब भी आप कोई West का makeup copy करोगे ना, आप हमेशा ये दो चीज़ बहुत common देखोगे. That the makeup is nicely contoured as well as highlighted. Emphasize on face structuring, and face structuring दो चीज़ों से आती है. एक contouring से, एक highlighting से. I'll be using this side of my blender to blend out the contour. Why I'm happy? Because being a makeup lover, I enjoy creating कलरफुल आई मेकअप लुक्स. नहीं तो वही 2-3 शेड्स के साथ प्ले करके ना आई फील वेरी वेरी बोर्ड. नहीं तो बस ब्लैक लगा लो, एक न्यूड ब्राउन शेड लगा लो एंड थोड़ा सा गोल्डन का टिंच दे दो, दैट्स इट. आजकल तो इतना ही न्यूड मेकअप चल रहा है, बट कलरफुल मेकअप इज समथिंग व्हिच आई लुक फॉरवर्ड टू एंड आई एंजॉय डूइंग इट ऑन माई सेल्फ. अभी आपको मेरा फेस थोड़ा मडी लग सकता है, बट वंस आई हाईलाइट एंड पुट ब्लशर, सब कुछ बहुत सीमलेस एंड सुंदर लगने लगेगा. Okay, for highlighting again, I'll be using my favorite combo, which is Huda Beauty plus Too Faced. Under Huda Beauty, I'm in the shade Marshmallow, and under Too Faced, I'm in the shade Swan. And दोनों को ही मैं बहुत अच्छे से लगा दूंगी अपने highest points of my face, which is my under eyes, the center of my forehead, below my contour lines, and little bit on my chin as well. Okay, I'll be blending the highlight part with the tip of my beauty blender. यहाँ का part हम downward blend करेंगे. यहाँ का पार्ट हम अपना थोड़ा सा नोज तक एक्सटेंड करेंगे. And then we'll blend the highlight shade from under the eyes. Guys, जब ये वाला हाईलाइट वाला शेड ब्लेंड करो ना, तो मेक श्योर कि आप इसे नोज की ब्रश तक लेके आओ. इससे आपकी नोज और भी चिजल लगेगी. ओके, अगर आपके ब्यूटी ब्लेंडर में प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा सैचुरेट हो जाए, जैसा मेरा हो गया है, तो एक क्लीन टिश्यू रखो, बस इससे रब कर लो एंड सारा एक्सेस प्रोडक्ट निकल जाएगा. एंड देन जस्ट गो ओवर अगेन, क्योंकि अगर ऐसी पाउडर सेट कर दिया ना तो क्रीजेस पड़ जाएंगी. Okay guys, it's time for a liquid blusher, and for that I'll be using She Glam liquid blusher in the shade Love Cake. It's a very beautiful pink shade. And you can see the brush placement on Zara's face. वो sides of the cheek में placed है rather than on apple of cheeks. इससे आपका face और uplifted लगता है. And nose की tip में भी नहीं है, nose की bridge में है blush, तो हम भी यहीं पे लगाएंगे. Okay, I'll be topping it up with O2O liquid blusher, and this one is in the shade 01. Just little I'll apply. Okay, I'll be blending the blusher with the butt of my beauty blender, क्योंकि यही वाला पार्ट क्लीन बचा है. एंड थोड़ा थोड़ा मैं अपनी अंडर आइज के नीचे भी लेके आ रही हूँ, क्योंकि आप ज़ारा की पिक्चर में देखो तो वहाँ पे भी पिंक इफेक्ट है. Guys, I'll try to copy the makeup look as close as I can, ताकि if you also try this makeup look out, then आप भी perfection के साथ ही ट्राई कर पाओ. आपने देखा होगा कि जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं अपनी टिप ऑफ द नोज पे लगाती हूँ ब्लशर एंड ऑन माय चिन एज वेल, बट आज मैं ये दोनों ही एरिया अवॉइड करूंगी. ओके, जितना ब्लशर ये बच गया है वो भी मैं लेके लगा लूंगी on the sides of my face. Okay guys, I'll remove the concealer from my upper eyelid because I'll be putting a eye base there. So मैं extra layer के लिए ये concealer हटा रही हूँ with a wet wipe. आई बेस इसलिए लगा रही हूँ ताकि मेरे आई शेडो और भी ज़्यादा पॉपिंग लगे. कंसीलर के ऊपर पाउडर लगाने से भी लगते हैं, बट आई बेस की बात कुछ और ही है, उससे और भी ज़्यादा पॉपिंग लगते हैं आपके आई शेडोज. ओके, फॉर आई बेस आई विल बी यूजिंग MAC Prolong Wear Paint Pot in the shade Soft Ochre, and I'll be applying it on my eyelids, just the eyelids. It's a very nice eye base, and if you are a makeup enthusiast, then आपको तो उसके बारे में पता ही होगा 100%, because पहले हर कोई यही आई बेस लगाता था. अब तो काफ़ी सारे आ गए हैं मार्केट में, लाइक पी लुइस का भी अब बहुत पॉपुलर है, लोग पी लुइस भी बहुत लगाते हैं, बट पहले एवरीबडी यूज टू रेव अबाउट दिस आई बेस एंड एवरीबडी यूज टू अप्लाई इट. बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है एंड स्टिल मेनी मेकअप आर्टिस्ट यूजेस इट, क्योंकि इसके बाद ना आपके आई शेड्स और भी ज़्यादा पॉप करते हैं. एंड जो भी एक्सेस है वो मैं जस्ट अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी.
Okay, for powder setting, I'll be using these two loose powders. This one is Huda Beauty Easy Bake in the shade Cupcake, and this one is One Size Loose Powder in the shade Ultra Pink. तो इन दोनों को ही मिक्स एंड मैच करके लगाऊंगी क्योंकि मुझे भी अपने मेकअप लुक में एक पिंकी इफेक्ट चाहिए एंड ये दोनों ही पाउडर्स कंबाइन करके मुझे एक बहुत प्यारा सा पिंकी इफेक्ट देंगे मेरे मेकअप में. But first, I'll remove the excess product from under my eyes because I crease a lot under my eyes, and this is a quick tip, or you can say tip number 2. कि जहाँ भी you get maximum creases, just take a Q-tip and smudge off the product from that place. It can be your forehead, it can be your laugh lines, and it can be your under eye as well, just like me. Or you can remove the excess product from the corners of your nose because यहाँ से you always tend to miss out on blending. And उसके बाद वो product accumulate होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. You can see I'm vigorously rubbing off the product from my face, and उसके बाद you just have to go over with a beauty blender to make your blending seamless and then powder set your face. And I bet you on that you won't face any crease lines ever if you try this technique out. हुडा ब्यूटी का कैप तो मुझे बहुत यूजलेस लगता है बिकॉज इसमें ऐसा सा एक स्ट्रक्चर है, तो वन साइज का बिल्कुल सपाट सा कैप है, तो थोड़ा सा आई विल बी टेकिंग पिंक पाउडर एंड हुडा ब्यूटी का भी इसमें आई विल टेक आउट दी पाउडर. आई विल मिक्स दोस टू पाउडर्स. किसी भी अपने ब्रश से दोनों को मिक्स कर लो और यू कैन मिक्स इट विद अ स्पैचुला एज वेल. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. आई हैव टेकन पाउडर ऑन माय पिज़्ज़ा पफ एंड एक्सेस मैं ऐसे निकाल दूंगी. आई विल ब्लेंड द क्रीज लाइंस वंस and for all, and then I'll set my under eyes and my upper eyelid as well. You can see how pretty my base is looking. I'll set my other part of the face as well. The most tricky part is your under eyes क्योंकि उसमें बार बार मूवमेंट से क्रीजेस आती रहती हैं, सो बार बार उसकी ना क्रीज आपको हटानी पड़ती है एंड देन यू हैव टू सेट इट. क्योंकि अगर आपने ऐसे ही सेट कर दिया, एक बार क्रीज आ गई तो वो आ गई, देन यू हैव टू रिमूव द मेकअप अगेन फ्रॉम अंडर योर आईज एंड देन दोबारा से पाउडर लगाना पड़ता है. तो वो सब अवॉइड करने के लिए एक बार क्रीज लाइन अच्छे से ब्लेंड कर लिया करो एंड देन सेट योर फेस. एंड मैं इससे पूरा सेट कर रही हूँ, मैं एक्सेस लगा रही हूँ अंडर आइज में ताकि थोड़ा सा बेक हो जाए. ओके, दैट्स अ लॉट ऑफ पाउडर, बट एक पिंकिश इफेक्ट के लिए एंड बेकिंग के लिए वी हैव टू अप्लाई इट. ओके गाइस, बीच बीच में ना एक वेट वाइप से अपने बालों से भी रिमूव द एक्सेस प्रोडक्ट, क्योंकि एक बार वो भी सेट हो जाएगा ना तो इट लुक्स वेरी अगली. कोई भी मेकअप प्रोडक्ट अगर आपके बालों में लगा रह जाता है ना तो इट लुक्स वेरी मेसी एंड अगली. एंड फॉर दैट सीमलेस मेकअप लुक, जस्ट मेक श्योर टू रिमूव योर मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर हेयर्स एज वेल. You can say it's a tip number 3 to remove makeup products from your hairs. Okay guys, it's time to contour our face. And आप ये वाली picture देखो, you can see how nicely contoured is Zara's face, and we'll be doing the same. Already her face is very chiseled, but still you can see strong contour or bronzer going on her face. And I'll be using Anastasia Beverly Hills palette today. मैं ये तीनों ही shades मैंने mix कर लिए हैं. And then I'll be applying it on the hollows of my cheeks. Especially her temples are well bronzed, तो हम भी सेम ही करेंगे. एंड हर फोरहेड एज वेल, फोरहेड भी बहुत अच्छे से ब्रॉन्ज करा गया. Then we'll be contouring our jawline. By the way, if you are curious, this brush is from the brand PAC and the number is 225. और आपको चीक्स ना में 3 बनाना होता है, आपको अपने हाफ फेस में 3 बनाना होता है, लाइक सो. इधर भी सेम करेंगे. You can see her nose as well, it's well contoured. एंड ये ब्रश ना बहुत अच्छा है क्योंकि ड्यूअल साइडेड है, एंड जो उसकी बैक साइड है ना, इट्स अ वेरी गुड शेप टू कंटूर योर नेल्स. एंड यहाँ पे एक ओ की शेप है, एज यू कैन सी. इस अगर आप ऐसे करते हो देन आपकी नोज और भी ज्यादा चिजल लगती है. एक यहाँ पे ऐसे ओ बना लिया करो. ओके, स्पेशली टू क्लीन योर नोज कॉन्टोर अपने बस पिज़्ज़ा पफ में हाइलाइटिंग शेड्स लो एंड जो भी आपने करा है ना उसके नीचे ऐसे पाउडर लगा दो, या तो उसके ऊपर भी पाउडर लगा सकते हो ताकि कुछ भी हार्शनेस वगैरह हो तो वो सब इससे कवर अप हो जाए. एंड नो, इट वोंट टेक अवे द डायमेंशन फ्रॉम योर नोज. आपकी नोज अब भी चिजल लगेगी. लुक एट माई नोज माइनस द हार्शनेस. It's time for the blusher. For that, I'll be using Too Faced blusher in the shade Cloud Crush.
and I'm pretty sure that she's wearing this shade only क्योंकि बहुत close है to the shade which she is wearing and ये मैं बहुत ज़्यादा लगाऊंगी अभी क्योंकि एक तो जब तक हमारा आई मेकअप एंड ऑल होगा इसकी इंटेंसिटी ऑलरेडी खत्म हो जाएगी and plus you can see on Zara's face as well there's a lot of blush going on and blush बिल्कुल भी आगे तक नहीं आ रहा है like बिल्कुल भी आपके apples तक नहीं आ रहा है it's just on the sides of your cheeks that's it guys इससे ना आपका फेस और भी स्नैच लगता है एंड अपलिफ्टेड लगता है एंड बस सेंटर ऑफ द नोज में ये वाला शेड लगाएंगे मैं वैसे अपनी टिप ऑफ द नोज पे लगाती हूँ चिन पे भी लगाती हूँ बट मैं अवॉइड करूंगी बिकॉज आई वुड ट्राई टू रेप्लिकेट द मेकअप एज क्लोज एज आई कैन एंड मजा भी आता है ना दूसरे दूसरे आर्टिस्ट का लुक रेप्लिकेट करने में ताकि आपको भी पता चले कि वो लुक आपके फेस पे कैसा लगेगा एंड इट्स अ पर्क ऑफ बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट लाइक मेरे को मेकअप करना अच्छे से आता है तो मैं दूसरे आर्टिस्ट का भी मेकअप अपने फेस पे रेप्लिकेट करती हूँ जैसे मैंने लूना भूषण मैम का किया था मीरा मैम का किया है पारुल मैम का किया है एंड नाउ सोफिया का एंड फिर से पता भी चलता है कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट अगर मेरे फेस में मेकअप अटेम्प्ट करेंगे तो कैसा लगेगा सो आई ट्राई टू रेप्लिकेट द मेकअप लुक एज क्लोज एज आई कैन Let's start with the brows. Brows you can see ज़्यादा define नहीं हो रखी हैं तो I'll just go over with a brow gel and this is from Anastasia Beverly Hills and I'm in the shade dark brown and मैं बस थोड़ा थोड़ा सा ही लगाऊंगी because it's very pigmented बहुत ही ज़्यादा pigmented brow gel है ये मैं बहुत sparingly ही लगाऊंगी ताकि कुछ over भी ना हो जाए and at the same time जो मेकअप वगैरह डिपॉजिट हो गया मेरे ब्राउज में वो भी हट जाए गाइस जब हम अपने फेस पे मेकअप करते हैं नो मैटर कि आप अपने ब्राउज में कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो बट विद ऑल दैट ब्लेंडिंग एंड एवरीथिंग ना आपके ब्राउज में भी काफी प्रोडक्ट लग जाता है यू कैन सी द डिफरेंस जबकि ब्राउ में अभी तक कुछ भी नहीं लगाया था ऑफ कोर्स Zara's hair color is very light as compared to me. She has blonde hair, तो उनकी brows भी बहुत light हैं. And my hair color is different, तो मेरी brows भी dark हैं. Okay, I think my brows looks good now. गाइस आई मेकअप काफी ड्रामेटिक है तो मैं ये एक्सेस पाउडर अपने अंडर आई से भी नहीं हटा रही हूँ एंड डोंट वरी मेरी अंडर आईज ड्राई नहीं होगी क्योंकि हम लाइक पूरा मेकअप करने के बाद एक बार डाल बैग स्प्रे और मार लेंगे तो हमारा फेस बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड लगेगा सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट फन पार्ट व्हिच इज द आई मेकअप एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग Morphe का humongous palette which is 39S. Okay, this is how the palette looks like and I hope कि इसमें मुझे सारे कलर्स मिल जाए मेरे आई मेकअप के लिए. Now let's start. Okay, first I'm going over with this shade which is a neon purple shade. I'm pretty sure कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के पास ये वाला आई शेडो पैलेट नहीं होगा because I don't think so कि अब आता भी होगा. I think it's discontinued. So if you don't have this eye palette and if you wish to recreate this makeup look then Mars के मैंने सुना है कि जो उनका एक बड़ा सा आई पैलेट आता है जिसमें सारे कलरफुल शेड्स हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल भी है एंड उसके शेड्स भी अच्छे हैं गाइस आई हैवंट ट्राइड इट आई हैव हर्ड द रिव्यूज एंड सब अच्छी ही रिव्यू दे रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो अच्छा ही होगा ओके आप देखो कि मैं सिर्फ अभी आउटर कॉर्नर्स पे ही लगा रही हूँ ये शेड पहले मैंने थोड़ा सा अपने अपर लैश लाइन पे लगाया ब्लेंड करते हुए एंड देन आई हैव फॉर्म्ड अ सी ऐसे सी बनाते हुए मैं ये शेड लगा रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर्स में ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट कर रही हूँ डिपॉजिट कैसे करना है एक्सेस ले आपको लेना है टैप करना है एक्सेस एंड देन टैप टैप करके पहले डिपॉजिट करना है एंड देन क्रीज लाइन पे भी इसको मर्ज कर देना है ओके लेट मी डिपॉजिट सम मोर कलर थोड़ा थोड़ा मैं इसे ऐसे एक्सटेंड करते हुए भी जा रही हूँ एवर सो स्लाइटली बहुत अभी हल्के हाथों से बिकॉज इट्स अ वेरी डेंस ब्रश तो इससे इतनी फेदर लाइक ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी उसके लिए मुझे ब्रश बदलना पड़ेगा एंड सेम आई एम डूइंग ऑन माई अदर आई एज वेल Okay, now I've taken a big fluffy clean eyeshadow blending brush एंड मैंने जो भी लगाया ना एक बारी मैं इसको सॉफ्टन अप करूंगी बस ब्लेंडिंग करेंगे प्योर इसको हमें पूरा अंदर तक नहीं लेके आना है बस इसे बाहर के पार्ट में ही रखना है आई एम जस्ट ब्लेंडिंग दी हार्श लाइन्स क्लीन ही ब्रश है पहले मैं ऐसे करके एक्सटेंड कर रही हूँ यहाँ पे भी ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पे भी इट लुक्स मच मोर सॉफ्टर एंड नीटली ब्लेंडेड
ओके, नाउ जो हमारा पर्पल शेड था ना, जो मेरा प्रीवियस ब्रश था, मैं उसको ही आगे तक एक्सटेंड कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन तक। अभी हमने सिर्फ आउटर कॉर्नर में फोकस किया था, बट नाउ जो भी रह गया है उसको मैं अंदर तक लेके आ रही हूँ। गाइस, अभी तक का आई मेकअप लुक काफ़ी सिंपल है, मैं काफ़ी सिंपल स्टेप्स में ही डिकोड कर रही हूँ। पर्पल शेड लेके हमने पहले अपने आउटर कॉर्नर्स में डिपॉजिट किया था, हाफ फ्लैश लाइन में लगाया था, एंड देन हमने एक ब्लैक फ्लफी ब्रश से इसकी ब्लेंडिंग करी थी, इसकी एजेस को सॉफ्टन आउट किया था, एंड अब जो भी मेरे ब्रश में बचा रह गया है ना, उसे ही मैं क्रीज पे लगा रही हूँ ताकि एक बहुत डिफ्यूज सा पर्पल लुक मिले हमें अपनी क्रीज में। यहाँ पे एक पैच आ रहा है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, ओके, जो हमारा बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है ना, एक बारी दोबारा क्रीज लाइन में हम गो थ्रू कर लेंगे ताकि बहुत अच्छे से ये भी जो भी हमने पर्पल लगाया ना वो डिफ्यूज आउट हो जाए। Okay, it's nicely done. Now we'll be taking this pink shade, take it, just off the excess, and then blend the crease line. It's a very pigmented shade. बस थोड़ा सा ही मैंने लिया है एंड मैं अच्छे से अपनी क्रीज लाइन की ब्लेंडिंग कर रही हूँ। एंड यहाँ से मैं अपना आउटर कॉर्नर यहाँ पे एक्सटेंड भी कर रही हूँ। I'll be doing the same on my other eye as well. थोड़ा सा यहाँ पे पिंक कम लग रहा है, so I'm going once again. थोड़ा सा मैं ये एंड थोड़ा सा डार्क पर्पल लेके अपने इनर साइड ऑफ आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी बिकॉज आई कैन सी द इंटेंसिटी ऑफ पर्पल इज मच मोर ऑन द इनर साइड ऑफ द आउटर कॉर्नर्स। तो सेम ही मैं ये कर रही हूँ, इन दोनों को लेके जस्ट आई एम डिपॉजिटिंग द प्रोडक्ट द डैबिंग मोशन। दैट्स इट गाइस, अभी तक का लुक सिंपल ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत समझना इसे, अभी तक बिल्कुल सिंपल है। देखने में हर चीज़ ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट अप इन वेरी सिंपल स्टेप्स फॉर यू ऑल। अभी तक बस हमने पर्पल ही लिया है, लगाया है, बस सेम। अब मैंने ब्रश में कुछ भी नहीं ले रखा है, मैं एक बारी क्रीज लाइंस पे गो थ्रू कर रही हूँ ताकि सब कुछ बहुत सॉफ्ट लगे, एंड इधर भी मैं हल्का सा इसे ऐसे एक्सटेंड कर दूँगी। यस, दैट्स इट। ओके गाइस, यू कैन सी कि इनर कॉर्नर्स में ना यहाँ पे लाइट शेड के साथ हाइलाइटिंग करी गई है, तो फॉर दैट आई विल बी यूजिंग दीज टू शेड्स। ये थोड़ा सा हमारा ग्रे टोन में है एंड दिस इज योर शैम्पेन शेड। इन दोनों को मिला के ही आई विल बी अप्लाइंग इट ऑन माई इनर कॉर्नर्स, थोड़ा सा नीचे, एंड देन यहाँ से लेके आई विल बी एक्सटेंडिंग इट अप लाइक दिस। ये स्टेप आपकी आईज को और भी ओपन अप करके दिखाता है। इफ यू वांट कि आपकी आईज बड़ी लगे, देन मेक श्योर कि आप अपनी आईज की हाइलाइटिंग ऐसी ही किया करो, लाइक दिस। ओके, नाउ यहाँ पे मैं बस थोड़ी सी सॉफ्ट ब्लेंडिंग कर दूंगी। ओके, आई एम जस्ट अप्लाइंग दीज टू शेड्स इन कॉम्बिनेशन। बहुत नॉर्मल है गाइस, बस हम अपनी इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रहे हैं एंड उसको ऊपर तक लेके जा रहे हैं, इससे आपकी आईज और भी ज़्यादा ओपन अप लगती हैं। ओके गाइस, फॉर इनर पार्ट ऑफ माई आईलिड मैं ये वाला शेड लगाऊंगी। ये ब्लैक शेड है जिसमें रिफ्लेक्सेस हैं पर्पल की, पिंक की, ग्रे की, एंड ये परफेक्टली जाएगा इस आई मेकअप लुक के साथ। इसमें ऑफ कोर्स और भी शेड्स हम टॉप अप करेंगे, बट ये काफ़ी हद तक क्लोज है टू व्हाट ज़ारा इज वेयरिंग ऑन हर आईज। ये मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे भी लगा रही हूँ। ओके, नाउ आई विल बी अप्लाइंग दिस वेरी ब्यूटिफुल लाइलैक शेड, एंड मैंने जो भी लगाया ना उस पर ही टॉप अप कर रही हूँ। स्पेशली मैं सेंटर पार्ट ऑफ माई आईलिड पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ओह, दिस शेड लुक्स वेरी क्लोज टू व्हाट ज़ारा इज वेयरिंग। एंड स्पेशली जो हमने अपने आउटर कॉर्नर्स वगैरह में भी लगाया ना, बहुत अच्छी सिम्फनी बैठ रही है विद दिस शेड। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लाइलैक शेड, एंड इसमें भी पिंक के रिफ्लेक्सेस हैं, इनफैक्ट पिंक के साथ साथ ग्रे के भी रिफ्लेक्सेस हैं। दोबारा से इसमें मैं ये वाला शेड ही टॉप अप कर दूंगी। It's looking absolutely pretty right now, but there's more to the eye makeup.
ओके गाइस, मैं ये वाला थोड़ा सा मेटालिक ग्रे शेड भी लगाऊंगी जस्ट ऑन द सेंटर पार्ट ऑफ माय आईलिड, लाइक सो, ताकि लुक काफी ज्यादा ज़ारा जैसा लगे। आई बी यूजिंग अ ब्रश ताकि एक नीट इफेक्ट आ जाए। नो डाउट कि फिंगर से ज़्यादा इंटेंसिटी मिलती है, बट नीट इफेक्ट हमेशा ब्रश के साथ ही आता है। एंड सेंटर में आई बी अप्लाइंग दीज टू शेड्स, ये दोनों आपके आई शैडो टॉपर्स हैं एंड दे आर वेरी ब्लाइंडिंग, एज यू कैन सी कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब क्या करूँगी, ये वाला आई शैडो जो टॉपर है ना, इसको मैं अपनी ऑल ओवर दी आईलिड लगा दूंगी ऐसे, ताकि कट क्रीज वाला इफेक्ट भी मिल जाए हमें। Yeah. Guys, this is how you get a cut crease wala eye effect without the need to do the actual cut crease. बस थोड़ा सा अपने आउटर कॉर्नर को हम डेफिनेशन और दे देंगे, जहाँ पे ये हमारा पार्ट खत्म हो रहा है ना, बस यहाँ पे। ओके, ओके, अगेन आई बी गोइंग विद अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश टू ब्लेंड आउट माई क्रीज लाइन, ताकि सब कुछ सीमलेस लगे एंड सुंदर लगे। एंड यहाँ से विल बी टेकिंग दिस ऑल द वे टू अ टेम्पल्स। फिर दोबारा से मैं अपने इनर कॉर्नर की शेड को लगा लूंगी, बिकॉज सारी ब्लेंडिंग एंड ऑल करने में ना ये शेड थोड़े से टोन डाउन हो गए हैं, हल्का सा, एवर सो स्लाइटली, नॉट सो मच। दैट्स इट गाइस। थोड़ा सा इफ यू वांट यू कैन ऐड ग्लिटर एज वेल। मेरे पास ये सिल्वर कलर का ग्लिटर है, तो आई एम प्लानिंग टू ऐड सम ऑन द सेंटर पार्ट ऑफ माय आईलिड। ओके, तो मैं कोई ग्लिटर ग्लू नहीं ले रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश एंड बस मैं इसे अपने डाल पर से गीला कर रही हूँ। मैं बस थोड़ा सा पिक करूंगी, बहुत थोड़ा सा, लाइक सो, एंड बस मैं इसे अपने सेंटर पार्ट में लगाऊंगी हल्का सा स्पेयरिंगली, एवर सो स्लाइटली, हल्का सा और एवर सो स्पेयरिंगली आई एम अप्लाइंग इट on the inner part of my eyelid for that glittery effect. Don't worry about the fallout, we'll take care of it. Just thoda thoda we'll be applying it on a eyelid. That's it. Guys, don't worry about the fallout, बस आपको एक बड़ा सा पाउडर ब्रश लेना है, just dust off the fallout, इसमें सब कैच हो जाएगा। एक कपड़ा लेना है, जैसे जैसे हटाते जा रहे हो ना, एक बार इसे ऐसे पोंछते चलो। देखो यहाँ से पूरा क्लीन हो गया, यहाँ से भी हम सेम कर लेंगे। ओके, लेट्स हाईलाइट द ब्राउ बोन, बिकॉज मुझे ब्राउ बोन में भी थोड़ी हाईलाइटिंग दिख रही है, तो उसके लिए आई हैव यूज्ड अ शैम्पेन आई शैडो टॉपर एंड उससे ही मैंने अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया, जस्ट द आर्क ऑफ माई ब्राउ बोन। बस, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स डू द eyeliner. For that, I'll be using NYX Epic Ink Liner. It's my new purchase. I'm using it in front of you all for the very first time. And let's see how it would perform. Okay, it's a brilliant eyeliner. I'm loving it. बहुत सही लग रहा है मुझे। मैंने बहुत लोगों को इसकी तारीफ करते हुए सुना था, बट इट्स जस्ट दैट कि आई हैवंट ट्राइड इट, लाइक अभी तक मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया था। आई एम वेरी फ्यूरियस ऑन माई सेल्फ कि अभी तक इतना अच्छा आईलाइनर मैंने ट्राई क्यों नहीं किया था। तो वेरी गुड आईलाइनर, बहुत अच्छे से लाइनर ड्रॉ हो रहा है एंड यू कैन सी कितना प्रिसाइज पिंक मुझे मिल गया है, जो मुझे चाहिए था। Guys, this eyeliner is a must recommended one. I'll link it in the description box or you can check the tag section as well. Whatever you feel like. Okay guys, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अपने टीयर डक को छोड़ दिया, वहाँ आईलाइनर को एक्सटेंड नहीं किया है क्योंकि ज़ारा के फेस पे सेम ऐसे ही हो रखा है। यू कैन सी कि मैं कितने हद तक कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई एम श्योर कि आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आएंगे। ओके, ओके, ओके गाइस, वी आर डन विद द आईलाइनर एंड आई होप कि दोनों ही आईलाइनर मेरे इवन लगे हों। मुझे तो लग रहे हैं इवन, आप लोग बताओ आपको लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ओके गाइस, आई हैव नोटेड द माइन्यूट डिटेल एज वेल। मैंने देखा कि टीयर डक में ना, यहाँ इनर कॉर्नर के साइड में ब्राउन कलर का काजल लगा हुआ है, बस इतने ही पार्ट में, तो मैं सेम वही कर रही हूँ। लाइक आप लोग बताओ आपने पिक्चर देख के नोटिस किया था या नहीं किया था। दिस इज द माइन्यूट डिटेल विच आई एम श्योर कि काफ़ी लोग मिस आउट कर जाएंगे। थोड़ा सा ना ये ब्लैक जो ये इनकम्प्लीट सा गया ना, हल्का सा मैंने बस इसकी लाइन को ओवरलैप कर दिया, बिल्कुल एवर सो स्लाइटली, बस पता भी नहीं चलेगा, बट एट द सेम टाइम हमारा मर्ज भी हो गया एक सीमलेस फिनिश एंड एक्सपीरियंस के लिए। For my lower lash line, I'll be using a skin color kajal and this one is from the brand Parulkar Beauty. And मैं इसे बहुत क्लोज लगाऊंगी, बिल्कुल हल्की सी लेयर, just this much.
and you can automatically see the difference. बस इतना सा. For my lower lash line, I'll be mixing pink as well as the purple shade, ये वाला shade and ये वाला shade मैं थोड़ा सा mix करके लगाऊंगी. थोड़ा सा पिंक ज़्यादा है नीचे, तो ये वाला हम और ले लेंगे and हम इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए लगा लेंगे. Yep, that's it. ओके गाइस, अब क्या करना है, एक ट्रिक देखो कि आपको अपना लाइटर शेड ऑफ कंसीलर लेना है. बहुत थोड़ा सा ही लेना है, जस्ट एक लिटिल बिट ऑफ लाइटर शेड ऑफ कंसीलर ऑन द बैक ऑफ योर हैंड एंड एक एंगल ब्रश ले लो या फ्लैट ब्रश ले लो, बट मेक श्योर कि योर ब्रश इज वेरी प्रिसाइज. यू जस्ट हैव टू क्लीन द एजेस ऑफ योर लाइनर एंड जो थोड़ा थोड़ा है ना, बस इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दो एवर सो स्लाइटली. एंड इससे ना आपका विंग लाइनर बहुत शार्प भी लगता है, प्लस आपकी आईज बहुत ज़्यादा डिफाइंड भी लगती हैं. यू कैन सी द डिफरेंस. Let me do the same on my other eye as well. बहुत हल्के हाथों से करना, ब्यूटी ब्लेंडर बहुत हल्के हाथों से चलाना, रगड़ना मत, अदरवाइज बेस मूव हो जाएगा. Ever so slightly. Yeah, that's it. Okay guys, for mascara I'll be using L'Oreal Panorama mascara. एंड मैं इसे बहुत अच्छे से अपनी अपर एज वेल एज ऑन माई लोअर लैश में लगा दूंगी. ओके गाइस, मस्कारा मैंने बहुत अच्छे से अपने अपर एज वेल एज लोअर लैशेस में लगा दिया है. नाउ लेट मी अप्लाई द मस्कारा ऑन दिस साइड एज वेल एंड आई विल बी राइट बैक. गाइस, इट्स टाइम टू ऐड द राइनस्टोन. ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट भी है एंड फन पार्ट भी है. लाइक बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर जाता है केक को चिपकाना, बट मजा भी आता है चिपकाते हुए. तो मैं करके दिखाऊंगी आपको. उसके लिए आई हैव बॉट दिस ऑफ Amazon. मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड राइनस्टोन को चिपकाऊंगी मैं लैश ग्लू से. गाइस, राइनस्टोन ऐड करने से पहले मैंने एक चीज देखी कि यहाँ इस पार्ट पे भी ना पिंक कलर है जो मेरा नहीं हो रखा था. अभी थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट मैं इसे टोन डाउन कर दूंगी. तो यहाँ मैंने थोड़ा कर दिया. क्या करूँगी, आई जस्ट टेक अ ब्रश एंड इससे मैं ब्लेंडिंग करूँगी. अभी ये दो लाइन अजीब सी लग रही है शाकाल की जैसे, बट वील जस्ट टोन इट देम डाउन. जो भी आपका ब्यूटी ब्लेंडर हो ना, जस्ट गो ओवर विथ योर ब्यूटी ब्लेंडर टोन डाउन द इंटेंसिटी. या थोड़ा सा बस हमें ऐसे करना है. एंड थोड़ा सा यहाँ पे पिंक तो हमने ब्लश ऑलरेडी ऐड किया था एंड बस ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे. ओके ओके, नाउ लेट मी ऐड द राइनस्टोन. तो पहले यहाँ पे हमें 3 लगाने हैं. 1 2 3 एंड तीनों में अब मैं ये लाइट पर्पल कलर के शेड्स चिपका दूंगी. यप, ठीक है. अच्छा, इस तरफ भी हम चिपका लेते हैं ताकि इवन हो जाए, नहीं तो एक आई हो जाती है एंड दूसरा हल्का अनइवन हो जाता है. दिस हियर हियर एंड हियर. तो इस टूल से ना लगाना बहुत ईजी हो जाता है. लाइक अगर आप उससे लगाओगे क्यूटिप एंड ऑल से, तो बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है. यानी कि को पिक करना बहुत डिफिकल्ट होता है. इसके आगे वैक्स लगी होती है, इसकी जो टिप होती है ना वो वैक्स की होती है, तो बहुत अच्छे से पिक कर लेती है राइनस्टोन. एंड यू जस्ट हैव टू प्लेस टू स्टिक देम. इफ़ यू ऑल्सो लाइक टू प्ले विद राइनस्टोन, तो ये वाला एक बार टूल ले लो. लाइक ये किटी ले लो पूरी एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट. एंड रैंडम से दो चार हमें डार्क पिंक शेड के प्लेस करने हैं. 1 2 3 यहाँ पे 4. ओके गाइस, जस्ट मेक श्योर टू यूज अ क्लियर लैश ग्लू व्हाइल स्टिकिंग योर राइनस्टोन. ब्लैक कलर की बिल्कुल मत यूज करना, या तो ट्रांसपेरेंट यूज करना या व्हाइट यूज करना. व्हाइट वाली ज्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि अगर आप क्लियर लैश ग्लू यूज करोगे ना तो वो आपको दिखेगी भी नहीं. इतना ज्यादा ड्रामेटिक जो मेकअप हो रखा है ना, उसके साथ वो क्लियर लैश ग्लू आपको दिखेगी ही नहीं. तो गाइस, पहले यहाँ पे हम 2 पिंक और लगा लेते हैं, यहाँ पे एंड यहाँ पे. ओके, फिर जस्ट ब्राउ बोन के नीचे है, उसके नीचे पर्पल राइनस्टोन एंड देन हम पर्पल एंड पिंक को मिक्स मैच करके लगाएंगे. पर्पल, वो पर्पल इज नॉट शोइंग अप, बट हाँ ब्लिंगी लगेगा अलग से.
Nice. Okay guys, I think we are done finally with the rhinestone. लंबी सांस लेके मैंने छोड़ लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा टायरिंग है एंड बहुत कंसंट्रेशन लगता है एंड बिल्कुल सांस रोक के बैठी नहीं पड़ती है कि कोई निकल ना जाए, कोई हट ना जाए. एंड आई थिंक वी आर डन विद द राइनस्टोन. नाउ वी हैव टू डू जस्ट द लैशेस एंड द लिपर. ओके गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि ज़ारा ने जस्ट हाफ आई लैशेस ही लगाई हैं. एंड अगर आपके पास हाफ आई लैशेस नहीं है, मेरे पास है बट वो ना उनकी वॉल्यूम बहुत कम है, तो मैंने क्या किया कि मेरी नॉर्मल साइज की लैशेस है, इनको मैंने कट कर दिया है, हाफ में जस्ट कट कर दिया और कुछ भी नहीं किया है, जस्ट हाफ में कट कर दिया है एंड मैं इसे ही लगा लूंगी. एंड इसे जस्ट मैं यहाँ प्लेस करके लगाऊंगी. लाइक सो. यू कैन सी इससे आप कितनी ज़्यादा लिफ्टेड लगती है और एट द सेम टाइम बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता. ओके गाइस, एक डिटेल मैंने और नोटिस करी है कि ये जो पर्पल शेड है ना, ये जस्ट आउटर हाफ में लोअर लैशेस के क्लोज क्लोज यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ऐड और कर दूंगी. एक एंगुलर ब्रश से जस्ट लोअर लैशेस के क्लोज क्लोज ऐड कर देना है, जस्ट हेयर. हल्का सा ना पर्पल पॉप करना चाहिए. दैट्स इट. नाउ जो हमने इतना ही खलेरा मचाया ना, उसको क्लीन करेंगे विद मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड ST20. पहले एक बार यहाँ पे हम अच्छे से लगाएंगे एंड देन ब्लशर को दोबारा हम रीटच करेंगे. इससे क्या होगा कि जो भी ग्लिटर पार्टिकल्स एंड ऑल होगा ना, वो क्लीन हो जाएंगे एंड थोड़ी सी कवरेज भी मिल जाएगी. बस दैट्स इट. मैंने बहुत हल्के हाथों से ही लगाया. दैट्स इट. नाउ लेट मी रीटच द ब्लशर. तो हमें ना पूरा यहाँ तक लगाना है, अंडर आइज के आउटर कॉर्नर पे यहाँ लेके एंड थोड़ा सा टेम्पल्स की तरफ भी, ताकि सब कुछ काफ़ी इवन लगे. इसको राउंड सर्कुलर मोशन में भी ब्लेंडिंग कर देना, पिंच करके जस्ट द सेंटर ऑफ द नोज हियर. ओके, बस खत्म होने वाला है गाइस, 2-3 स्टेप और बचे हैं. प्लीज बी विद मी, बस 2-3 स्टेप और एंड विल बी डन. हाईलाइट बहुत ज्यादा सटल है, बहुत ज्यादा सटल. तो मैंने ये डियोर का बैक स्टेज हाईलाइटिंग पैलेट लिया है इन दी शेड 004 विच इज रोज गोल्ड. एंड मैं बस ये वाला शेड पिक कर रही हूँ, जस्ट दिस वन. एंड बहुत ज्यादा हल्का मैं यहाँ लगाऊंगी, एवर सो स्लाइटली, बहुत हल्के हाथों से, ब्रिज ऑफ द नोज में भी. एंड मैं देख रही हूँ हाईलाइटर ना थोड़ा इधर ऐसे लगा हुआ है, जैसे हम ऐसे लगाते हैं ना अपने हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ फेस में, बट आई कैन सी लिटिल बिट ऑफ highlighter on this part of Zara's face. I'll be reciprocating the same. थोड़ा सा will be applying here. अपने bridge of the nose पे भी लगाना है and बहुत हल्का सा टिप पे भी लगाना है. Just as much. Yep. Okay guys, lips के लिए I'll be using a dark brown shade of lip liner which is Cross the Line from Maybelline Lifter Liner. And इसकी टिप देख लो, बिल्कुल ही खत्म है. मैं इसमें लगा रही हूँ. अपने लिप्स ना अच्छे से आपको डिफाइन करना है. Okay? अब जो आपने लिप लाइनर लगाया ना, उसको स्मच करो. मैंने एक फ्लैट आई शैडो ब्रश से ही स्मच कर लिया है. मैंने एक रील में देखा था कि सोफिया ने ज़ारा के लिप्स में फेंटी की कुछ ग्लॉस बॉम्ब स्टिक लगाई थी जो पर्पल कलर की है. मेरे पास नहीं है ऑब्वियसली, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक ट्रिक लगाएंगे. हमारा जो स्विस ब्यूटी का जेली बॉल स्टिक है ना, इन दी शेड नंबर 06, बहुत सिमिलर है. इसको अपने लिप्स पे लगाएंगे फॉर दैट ग्लिटरी पर्पल लुक, जस्ट द सेंटर ऑफ माई लिप्स. इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे लाइक सो. Now let me apply the gloss. For that I'll be using Elf का lip plumping gloss and this one is in the shade Sweet Talker. And इसे लगाएंगे बहुत अच्छे से. Okay, this one is looking nice but not so juicy. For juiciness I'll be adding Dream Beauty का lip gloss in the shade Celine. And ये lip gloss ना बहुत प्यारे हैं. I should have added this one only in place of Elf, but nevertheless top up कर लेते हैं. Okay guys, I promise this is the final step. Just one final spritz of Dalba का first serum spray. Let me dry it up, quickly change and be right back. Okay guys, this is my finished makeup look. And मुझे आप लोग rate करके बताओ कि how close is my recreation to Zara's makeup look. I hope it's
exactly the dupe. At least I feel so कि बिल्कुल मुझे सेम हूबहू मेकअप लुक लग रहा है. Just ignore the brows as well as the hair color because of course वो different है. But आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा एंड कितना क्लोज लगा इस रेफरेंस पिक्चर से. इस मेकअप लुक में मैंने भर भर के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं एंड ये मेकअप लुक भी मैंने बहुत सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है. आई होप कि आप सबको पसंद आएगा. In case if you do love my makeup look and my efforts, then do like, share and subscribe to my YouTube channel Gauri Styles. Hit the bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. And guys, इस मेकअप लुक के साथ ना मैं बहुत प्यारे प्यारे ट्रांजिशन शॉट्स भी लेके आऊंगी and kindly engage on my YouTube shorts as well and enjoy some beauty shorts. Till then, bye bye, take care, God bless you all, keep smiling and keep doing makeup.